You are at your teacher's classroom. सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सिंप्लीफाइड इंटरैक्टिव एनसीईआरटी कंटेंट को पढ़ने के लिए। वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं एट योर टीचर्स क्लासरूम। मैं हूं आपका दोस्त, बड़ा भाई और इंस्ट्रक्टर संतोष झा। टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट द एरिड सॉइल। दिस इज द fifth one. This is the fifth video under the head of classification of soil. And so let us start from the concept map first. This is your concept map on the center of the screen. You have done here alluvial soil, black soil, red and yellow soil, laterite soil. And today we have to study about the arid soil. What is the location of the arid soil, what is the characteristics of the arid soil, and what is the fertility of the arid soil, and what types of crops can you produce in arid soil. Okay, so what will be my learning objective? My learning objective will be, after studying this lesson, you will be able to know about the classification of soil on the basis of relief features and how to explain the locations, characteristics, and fertility of the arid soil. And so let us start from the tutorial part under the head of discussions. This is a central screen. As you know, this is a very usual screen for you. You have already done 4 parts of this video, and today you are going to do the 5th part of this video, that is classification of soil, that is arid soil. You have already done the alluvial soil, black soil, red and yellow soil, and laterite soil, and you can see here the multicolored map in which all the soil has been located. So you can say that India has a varied relief features, landforms, climatic realms, and vegetation of types. And these have contributed in the development of various types of soils. So let us start from the arid soil and its location from here exactly. So arid soil is present in western Rajasthan, as you already see on the India map, and the northern Gujarat. This is the northern Gujarat on your India map. And after the proper irrigation, these soils become cultivable. You can see this map. Some of the parts of Haryana and Punjab is also in this category. Yani they have also arid soil. Okay, so if you find that arid soil sometimes also known as desert soils, and it consists of aeolian sand. What do you mean by aeolian sand? मेरे प्यारे बच्चों, एलियन सैंड जो है, इसका मतलब ये हुआ कि वेस्टर्न साइड से जो हवा राजस्थान की तरफ से पश्चिम के दिशा से जो हवा आती है, वो डेजर्ट के एरिया से कुछ सैंडी पार्टिकल्स को लेकर के हरियाणा और पंजाब और राजस्थान के क्षेत्रों में मिट्टी के ऊपर में उसे छोड़ देता है, जो इस स्पीड के साथ आती है। दैट इज नोन एज एलियन सैंड। उसको हम एलियन सैंड बोलते हैं क्योंकि वो हवा के साथ उड़ करके राजस्थान के डेजर्ट एरिया से आकर के पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास में भी कुछ मेरठ साइड के एरिया में आकर के मिट्टी के ऊपर में वो बैठ जाता है। खास करके दिल्ली में रहने वाले लोग इसे आसानी से फील कर सकते हैं। और इस प्रकार की जो सॉइल में सैंड की मिलावट होती है, उसकी मात्रा 90 से 95% होता है, और जो क्ले होता है इस डेजर्ट एरिया सॉइल में वो ओनली 5 से 10% होता है। ओके, दूसरा पार्ट हम इसमें देखते हैं कि दे कवर ए टोटल एरिया ऑफ 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के पूरे सॉइल का और जो पूरा सॉइल रीजन है उसका 4.32% है। द प्रेजेंस ऑफ सैंड इनहिबिटेड सॉइल ग्रोथ, डिजर्टिफिकेशन ऑफ नेबरिंग सॉइल्स। व्हाट डू मीन बाय दिस? डिजर्टिफिकेशन ऑफ द नेबरिंग सॉइल्स। सपोज कीजिए कि आपके पास एक इतना बड़ा लैंड है और हाफ पार्ट ऑफ द लैंड जो है अच्छा सा सॉइल है और हाफ पार्ट ऑफ द लैंड में आपका डेजर्ट है, और इस साइड से हवा की आंधी और तूफान काफी जोर से रेगुलर टाइम इंटरवल पर कुछ कुछ समय के बाद आते रहे, तो यहाँ से सैंडी पार्टिकल उड़ करके हवा के साथ फ्लो करके इस मिट्टी वाले रीजन में आ जाता है। तो क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे ये सैंड पार्टिकल्स आपके मिट्टी वाले रीजन के ऊपर में आकर के बैठ जाएगा। अगर आप यहाँ पर 2-4 साल तक खेती बाड़ी ना करें तो ऐसा फील होगा कि ये लैंड भी आपका डिजर्टिफिकेशन हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार के सिद्धांत को प्रोसेस ऑफ डिजर्टिफिकेशन ऑफ सैंड कहा जाता है। सो ये नेबरिंग सॉइल को बहुत अफेक्ट करता है। मतलब ये हुआ कि राजस्थान जो वेस्टर्न साइड में डिजर्ट आपके पास डिजर्ट है,
उसके आसपास के क्षेत्र में जो हरियाणा का बॉर्डर है, पंजाब का बॉर्डर है, जो दिल्ली के आसपास का रीजन है, और यहाँ तक कहिए कि मेरठ तक इसकी चीज़ों को देखा जाता है कि वो मिट्टी के ऊपर में उस सारे सैंड वहाँ से आकर के बैठ जाता है। दैट इज कॉल्ड एलियन सैंड। एलियन सैंड उसको बोला जाता है। तो ये एक प्रोसेस ऑफ डिजर्टिफिकेशन ऑफ सैंडी सॉइल है, जो डिजर्टिफिकेशन ऑफ सॉइल होता है, ये ड्यू टू द इंट्रूजन ऑफ डिजर्ट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। डेजर्ट सॉइल या एरिड सॉइल अकर ऑल्सो इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। द सैंड हेयर इज ब्लोन फ्रॉम द इंडस बेसिन। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये चीज देखिए कि इंडस बेसिन किसको बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंडस रिवर जो चाइना के इस प्लेस से, आप माउस का कर्सर देखिए, ओरिजिनेट होकर के जम्मू कश्मीर लद्दाख से ऐसे करके पास करके जब वो पाकिस्तान में ऐसे करके एंटर होती है, दीज आर द पाकिस्तान एरिया। तो इंडस नदी के चारों दोनों साइड जो फ्लड प्लेन है, दैट इज नोन एज इंडस बेसिन, यानी इंडस रिवर की पानी जहां तक फैलता है, दैट इज नोन एज इंडस बेसिन। तो मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर जो सैंड है वो वेस्टर्न विंड के कारण हवाओं के साथ फ्लो करके, और हमारे एरिया में जो इंडिया के राजस्थान है, नॉर्थ वेस्ट रीजन, जो पंजाब है, जो हरियाणा है, उस मिट्टी के ऊपर में आकर के बैठ जाता है। और ख़ास करके कुछ और भी विंड होते हैं जो कि अरबियन ओशन में साउथ वेस्ट कॉर्नर से चलते हैं, और इधर के भी कुछ सैंड को लेकर के वेस्टर्न साइड में, जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, इसके ऊपर में डाल देते हैं। वो ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून विंड के कारण होता है। तो यहाँ पर भी आपको ये एरिड सॉइल पाया जाता है। सैंडी सॉइल्स विदाउट क्ले फैक्टर आर ऑल्सो कॉमन इन कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा। ये इधर भी होता है, ये आपका उड़ीसा है, तमिलनाडु है ये आपका, और ये केरला। तो इसके रीजन में भी कुछ इस प्रकार की सॉइल पाई जाती है। तो एरिड सॉइल आपने देखा किस किस रीजन में पाई जाती है। अब हम चलते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिड सॉइल के बारे में पढ़ने के लिए। आइए। Arid soils typically contain high level of calcium carbonates, gypsum as well as sodium. Sodium, as you know, sodium chloride, उसमें जो सोडियम होती है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, कली चूना इसे कहा जाता है। जनरली आप इसे देखा होगा कि कभी कभी इसमें अगर पानी डाल दिया जाए तो गैस फॉर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और अगर आप इसे 10-12 घंटे छोड़ दें पानी मिला करके, तो फिर इसके पेस्ट से आप अपने घर की पेंटिंग भी कर सकते हैं। और फिर जिप्सम, ये आप जानते हैं। तो ये सब चीज इस सॉइल में केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है। दे आर ऑल्सो दे डू नॉट हैव full of organic matter. They are usually poor in organic matter. Organic matter का मतलब क्या होता है कि एरिड सॉइल जो है, ऑब्वियसली इसका अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और ये लो रेनफॉल एरिया में पाया जाता है। तो जब ये एरिया लो रेनफॉल होगा, जब ये वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो उसके अंदर में जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो कोई मिट्टी में रहने वाले जीव जंतु हैं, वो उसमें हो नहीं पाएगा, और उसमें जो भी जीव जंतु रहेगा वो उसकी मात्रा कम हो जाएगी। वहाँ पेड़ पौधे भी कम होते हैं, तो पत्तियाँ का गिरना उस सॉइल पे नहीं होता है, और इस तरीके से हम्मस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। सो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि उस मिट्टी के अंदर में, एरिड सॉइल के अंदर में ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। और जिस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की कमी हो, हम्मस की कमी हो, ऑब्वियसली उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो है वो 100% सही तरीके से नहीं की जा सकती है, उसकी फर्टिलिटी अच्छा नहीं हो सकता है। सो सम डेजर्ट सॉइल्स और एरिड सॉइल आर अल्कलाइन इन नेचर होता है, विद वेरिंग डिग्री ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें भी पाया जाता है। कैल्शियम कंटेंट इंक्रीजेस डाउनवर्ड्स। अब देखिए, जहां पर आपका एरिड सॉइल है वो टॉप पर है एरिड सॉइल, और अगर आप टॉप से थोड़ा सा बॉटम जाएंगे, दैट इज कॉल्ड सब सॉइल। क्योंकि ये चीज आप पार्ट 3 जो था इसका लेसन, जिसमें आप सॉइल एज ए नेचुरल रिसोर्स पढ़े थे, उसमें आपको पता है कि सॉइल का अपना प्रोफाइल होता है। सबसे ऊपर वाले को टॉप सॉइल बोलते हैं, उसके नीचे सब सॉइल बोलते हैं। तो एरिड सॉइल में क्या होता है कि जब आप सब सॉइल के रीजन में जाइएगा, तो कैल्शियम की मात्रा 10 गुना अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। एंड द फॉस्फेट कंटेंट ऑफ दिस सॉइल इज एज हाई एज इन नॉर्मल एलुवियल सॉइल्स। ये भी ज्यादा होता है। और नाइट्रोजन इज ओरिजिनली लो, बट सम ऑफ इट्स अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। तो ये जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अच्छा है इस सॉइल के लिए। अब देखते हैं कि इसमें किस प्रकार की क्रॉप्स जो है सो इसमें होगा। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट कि they are generally sandy in texture or saline in nature. In some areas, the soil has
हाई कंटेंट ऑफ सॉल्ट्स, जैसे कि आप इसमें देखते हैं राजस्थान के साइड में ये वाले एरिया में ये सैंडी एंड सलाइन होता है। और फिर कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन। व्हाट डू मीन बाय कॉमन सॉल्ट? सोडियम क्लोराइड जिसको आप बोलते हैं, इज ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग द वाटर ड्यू टू हाई टेम्परेचर। इवेपोरेशन इज फास्टर इन दीज रीजन्स। चूंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वैसे भी यहाँ पर लो रेनफॉल एरिया है, तो जो कुछ भी मॉइस्चर और नमी इस एरिड एरिया में है, डेजर्ट एरिया में है, वो भी वेपोराइज हो जाता है बड़ा आसानी से। और अगर वाटर उसमें से वेपोराइज हो जाएगा, मॉइस्चर वेपोराइज हो जाएगा, तो उसमें बच किया जाएगा कॉमन सॉल्ट जो कि ग्राउंड में होगा। एज यूजुअल आप जानते हैं कि आप अपने किचन में जाइए, चूल्हा पर थोड़ा सा पानी में नमक मिला के डाल दीजिए, वेपोराइज कीजिए, पानी उठ जाएगा और सोडियम क्लोराइड आपके नीचे बैठ जाएगा। ये सेम प्रोसेस डेजर्ट एरिया में होता है एरिड सॉइल के ऊपर में। ओके, सो बच्चों आपने इसे देखा। सो दिस सॉइल, अगर इसमें मॉइस्चर की कमी है और जैसे हमस की कमी हो गई, तो ऑब्वियसली ये सॉइल कंप्लीटली फिट फॉर द एग्रीकल्चर नहीं होगा। और ये सॉइल का जो वाटर डेफिशिएंसी है वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब हम इसमें डू यू नो में कुछ देखते हैं। द लोअर होराइजन ऑफ द सॉइल्स आर ऑक्युपाइड बाय कंकड़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। चूंकि कैल्शियम कंटेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि टॉप सॉइल और उसके बॉटम में सब सॉइल है, तो सब सॉइल रीजन में कैल्शियम 10 गुना बढ़ जाता है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल में और भी टॉप का लेवल का सॉइल है उसमें कंकड़ ज़्यादा होता है। एंड द कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होराइजन रेस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। तो जो बॉटम में जब कंकर आ जाती है तो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को रोकता है वो, और वो अंदर नहीं जाने देता है। तो जो भी वाटर और नमी रहेगी टॉप पे रहेगा और वो इवेपोरेट कर जाएगा। इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट जो कि नमक के फॉर्म में या कुछ सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में है, वो उसके सरफेस पे रह जाएगा। इस प्रकार से एरिड सॉइल जो है साल्टी इन नेचर हो जाता है। अब हम देखते हैं फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल ड्यू टू द लिमिटेड मॉइस्चर एंड एक्यूमुलेटेड सॉल्युबल सॉल्ट्स। क्यों आपने कहा ये चीज लिमिटेड मॉइस्चर? आपको पता है कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन हो गया तो मॉइस्चर तो एकदम कम हो गया। अब कहता है एक्यूमुलेटेड सॉल्युबल सॉल्ट। वेरी सिंपल कि अगर आपका मॉइस्चर वेपोराइज कर गया, इवेपोरेट कर गया धीरे धीरे, तो बच क्या गया ग्राउंड में? सॉल्युबल सॉल्ट जो मिट्टी के साथ मिला हुआ था वो क्या था? कॉमन सॉल्ट था। सो दीज सॉइल्स आर जनरली नॉट suited for most or major crop productions. Okay, however, if properly managed का क्या मतलब है कि अगर आप उसके लेयर पे सोडियम क्लोराइड है उसको हटाइए, आप मिट्टी के एक लेयर को हटा करके उसके अंदर जाइए एंड इरिगेटेड विद द कंप्लीटली प्रॉपर वाटर जो है उसमें इरिगेट कीजिए, इस सॉइल में बिकम प्रोडक्टिव। मेरे दोस्त, ये आपको जान करके आश्चर्य लगेगा कि सऊदी अरबिया में उसके चारों साइड डेजर्ट एरिया है। ओके, लेकिन उसने अपने डेजर्ट एरिया को, एरिड सॉइल को इतना फर्टाइल बना लिया है कि आप सुन के आश्चर्य में रह जाएंगे कि वहां से भारत सरकार इंपोर्ट कर रही है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सऊदी अरबिया जैसे रीजन से जहां पानी की कमी है और जहां एरिड सॉइल ही सॉइल है, वहां से भारत को इंपोर्ट मिल रहे हैं। तो क्या टेक्नोलॉजी सऊदी अरबिया ने यूज किया है, आप पढ़ सकते हैं। आप जाइए saudiarabia.gov.in पर और वहाँ के एरिड सॉइल में किए गए पॉपुलेशन प्रोडक्शंस के बारे में जानकारी लीजिए। अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो इस कंटेंट से एबव लेवल की जानकारी आप ले सकते हैं। ओके, सो हम इस फर्टिलिटी में देखते हैं कि किस टाइप का क्रॉप्स होता है इस एरिड सॉइल में। देखिए, अगर फॉस्फेट्स है जिसको आप डाई अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका डीएपी होता है। कई सारे बच्चे जो गांव में रहते हैं उनको पिताजी अगर फार्मर है या वो चीज़ तो पता होगा उसको कि डाई अमोनियम फॉस्फेट आपके घर में अगर साबूदाना है उतने बड़े बड़े गोले दाने का होता है और गेहूं में खेती में इसका यूज की जाती है। थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का और रेडिश कलर का होता है। सो मेक दिस सॉइल फर्टाइल व्हेरेवर मॉइस्चर इज अवेलेबल। अगर मान लीजिए कि एरिड सॉइल में कहीं पर मॉइस्चर अधिक है, आप उसमें फॉस्फेट्स मिला दीजिए तो उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ जाती है और आप वहां पर अच्छा सा क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। इन द सेम वे कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ reclaiming these soils if proper irrigation facilities are available. In large areas, only the drought resistant and salt tolerant crops such as barley, cotton, millets, maize and pulses are grown in the arid region. तो ये आपको टंग पे याद होना चाहिए कि जो बार्ली है, कॉटन है, मिलेट्स है, मेज है और पल्सेज, ये आसानी से एरिड सॉइल में फॉस्फेट और नाइट्रोट को यूज करके जहां पर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर है आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के अंदर में आपने एरिड सॉइल की जानकारी ली, ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
और इतना समय देने के लिए और इस वीडियो को पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये सारी क्लास योर टीचर्स क्लासरूम में पढ़ रहे थे। मेरा नाम संतोष झा है और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, नमस्कार।